Hello dear students, today I am going to continue chapter 3, session 3 of the Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce Business Services 2. In first two sessions, I already started the services that is banking. This whole chapter is related to the banking only. So this business service is second, that is related to only and only banking. Also, we discuss what is bank, what is the particular word bank came, discussion was already done. Also we discussed that main functions, four main functions of the banking we discussed in the last session. Today I'm going to continue with the subsidiary functions of bank. यानी different four main functions are there. चार फंक्शन जो है वो बैंक के मेन फंक्शन, कोर फंक्शन कहे जा सकते हैं. उसके सिवा बैंक का कोई भी काम शुरू नहीं होता. लेकिन with the help of that main functions, some of the subsidiary functions are here, and bank providing these subsidiary functions to their customers, to their clients, to the account holder. So let's start with the subsidiary function number 1. The first one is to look after the financial transactions of the customer. जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हो, ओके, मे बी वी कैन से सेविंग अकाउंट मोस्टली रहेगा, उसके टाइप्स भी हमारे नेक्स्ट सेशन में आ जाएंगे. वो टाइम पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ द अकाउंट्स क्या काम करते हैं. लेकिन जब वन पर्सन यानी वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल और बिजनेसमैन हु इज ओपनिंग द अकाउंट इन द बैंक, all the working of that particular customer, that is on the basis of deposits and withdrawal, also some of the payments through the checks. So all this financial transaction, now you are a man of commerce, right? Now you are in the field of the accountancy, now you are in the field of the commerce, you know that one, what are the different type of the transactions and financial transactions are there. So whenever the bank is there, bank will look after the financial transactions of all customers through a particular software, or we can say through the particular type of the system. So here a bank has mainly two types of customers. बैंक के पास दो टाइप के कस्टमर आते हैं, those who are opening the accounts. The first one is depositor who will deposit the money, and second one borrowers. दोनों के अकाउंट तो वहाँ होंगे ही होंगे. That's why they are taking the benefits of the deposits and borrowing. Sometimes both are the same person, sometimes both are the different persons, right? Depend upon the service of that particular bank. और हर जगह बैंक देखते हो आप, they are receiving the money from the persons and depositing on the basis of that one, and the money is lended to the other person. यानी बैंक किसी से पैसे लेती है और किसी को देती है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया है. So simply two types, depositor and borrowers. Such customers do their financial transactions through the bank. So those who are depositor, they will withdraw the money. Those who are borrowers, they will deposit the money. यानी they will pay the amount of the interest, they will pay the amount of the installments, whatever. जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है उसको समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, इजीली आप समझ सकते हो. तो डिपोजिटर है वो पैसे लेने को आएगा, और जो बोरोवर है वो पैसों को अपना उसने बैंक से लिया है तो वापस करने आएगा. दैट मीन्स कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते रहेंगे विद द बैंक. सो व्हेन अ कस्टमर राइट्स अ चेक इन फेवर ऑफ अदर पर्सन, then the money is paid to that person by bank on behalf of the person who has written the check. अब एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है. मिस्टर ए इज राइटिंग द चेक, वो चेक लिख रहा है, उसको पैसे देने हैं मिस्टर बी को. अब पैसे लेने तो मिस्टर ए जाएगा नहीं, क्योंकि मिस्टर ए ने ही पैसे दिए हैं मिस्टर बी को, तो पैसे लेने जाएगा मिस्टर बी. तो वो जो मिस्टर बी है उसके नाम का चेक, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे सिलेबस में है, डोंट वरी अबाउट दैट वन, राइट? इट इज ऑल्सो देयर इन अकाउंटेंसी चैप्टर 6-7 एंड ऑल्सो हियर इन दिस चैप्टर, ओके. ये लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए चेक क्या है, ओके. वो सिंपल सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. लेकिन अभी के लिए आपने देखा ही होगा, चेक के लिए एक बात सिंपल सी समझ लो कि दैट पर्टिकुलर चेक is given by one person to other person for the payment, and the other person will receive the amount. So यहाँ मिस्टर ए ने चेक लिखा बी के ऊपर, और बी ने वो बैंक में क्रेडिट करवाया, यानी बैंक में उसने वो चेक डिपॉजिट करवाया. अब क्या होगा, कस्टमर जो है वो चेक लिखेगा, यानी मुझे पैसे देने हैं मिस्टर बी को, तो मैंने चेक उसकी फेवर में लिख दिया. सो मनी किसको जाएगा, मिस्टर बी को, ओके. और कौन देगा, बैंक देगा ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए, जिसने चेक लिखा है. तो सिंपल सी इंफॉर्मेशन है. तो यहाँ एक आदमी ने चेक लिखा है, दूसरे ने उसको विड्रॉ किया है. तो इन द सेम वे व्हेन अ पर्सन रिसीव्स अ चेक फ्रॉम द अदर पर्सन, द बैंक कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द अदर पर्सन हु हैज रिटन द चेक ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु हैज रिसीव्ड द चेक, ओके. तो यहाँ पर दूसरे एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे बैंक ने पेमेंट किया,
वैसे ही बैंक ने पैसे रिसीव किए। सो जो मैंने ए बी का नाम लिया वो उल्टा हो गया। अब जो बी ने पैसे लिए हैं, राइट, शायद भी कैश ना भी ले, वो डायरेक्ट अकाउंट में जाए उसके पैसे, तो वो जब भी बैंक में जाएगा और चेक देगा तो उसको पैसे नहीं चाहिए अभी, तो दैट अमाउंट विल बी डायरेक्टली इन द अकाउंट, यानी उसको हम बोलते हैं क्रॉस्ड चेक, उसको बोलते हैं अकाउंट पे ही चेक। उसमें आपको कैश नहीं मिलती, आपके खाते में ही पैसे जाते हैं। तो ऐसा चेक हो तो सामने वाले को रिसीव करे, तो यहाँ बैंक रिसीव करती है, सिंपल है। सो एक जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें ए ने बी को चेक लिखा, बी ने उसका विड्रॉ लिया। दूसरा एग्जाम्पल जो देखा सेम वे में कि पर्सन जो चेक रिसीव करता है, राइट, वो बैंक में पैसे डालेगा, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। ओके, सो इन प्रेजेंट टाइम अ बैंक परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स सच एज पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड फोन बिल्स। तो यहाँ पर अभी देर इज नो नीड टू विजिट द प्लेस टू पेमेंट और टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल्स। टेलीफोन बिल है, मोस्टली टेलीफोन बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हमें पहले जाना पड़ता है, लेकिन नाउ इट इज़ वेरी इजी, पे द अमाउंट डायरेक्टली थ्रू द डिफरेंट एप्स, ओके, वेबसाइट्स। एंड ऑल्सो द सिंपल थिंग इज देयर के अब तो खुद के उनके जो ऐप्स है उसको आप फॉलो भी कर सकते हो। ओके, सो जनरली जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसके, सो यहाँ पर कस्टमर के लिए बैंक ने जो भी व्यवस्था की उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फ़ोन बिल है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी है, राइट, डायरेक्टली जो इंश्योरेंस कंपनी उसके साथ टाइप होता है, यानी टाइप तो समझिए, लेकिन सिंपल सा कि एट द एंड ऑफ दिस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, जो डिसाइडेड टाइम पीरियड है वहाँ पर उस टाइम पीरियड पर आपके अकाउंट में से बैलेंस कट हो जाएगा रिलेटेड टू द इंश्योरेंस प्रीमियम और अदर थिंग्स, एंड ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ मनी from one account to another account, etc. So these are some information. So you can easily transfer your amount nowadays through the different UPI also. You can transfer your amount from one account to another account. So these services related to the financial transactions are provided by the bank to their customers. ये बहुत information easy है, लेकिन याद रखना है आपको कि बैंक के पास कितने टाइप के कस्टमर्स आते हैं, राइट, वो याद रखना, क्योंकि हर बार क्या होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि बैंक में कितने अकाउंट खोले जाते हैं, कैसे अकाउंट खोले जाते हैं, उसमें कैसा काम किया जाता है। वी डोंट नो कि बैंक के पास जो मेनली टाइप से कस्टमर्स है वो कैसे है, राइट। तो दो है, डिपोजिटर एंड बोरोवर। इसमें हम एक ऐड भी कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, राइट, जो एफडी में स्लिप डालते हैं। तो ये सब आएगा वापस नेक्स्ट सेशंस में, तो हम देखेंगे उसमें, लेकिन अभी के लिए ये फर्स्ट वन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन, to do transactions associated with foreign exchange. अब समझ लो कि वी आर लिविंग इन दैट टाइप ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो दैट टाइप ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो दैट टाइप ऑफ द रीजन वेर मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर आउट ऑफ द कंट्री, यानी मोस्ट ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम द फैमिली, 1 और 2 पर्सन्स आर आउट ऑफ द कंट्री। सो यहाँ पर हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करें, सो मे बी फॉरेन एक्सचेंज इज देयर। सो बैंक अभी के लिए क्या करती है, दे आर एंड ऑल द बैंक्स ट्राइंग टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। कैसे वो हमको फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करती है देख लेते हैं। नाउडेज रिलेटेड टू द बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इज डन कंपल्सरीली थ्रू बैंक। अब देखो, मैंने तो एक इंडिविजुअल की बात की, यानी कि मैं यूएसए जा रहा हूँ और यूएसए में स्टे होगा, तो उसके बाद जो भी अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी मेरी फैमिली देखेगी, उसमें पैसे जो आएंगे थ्रू द पर्टिकुलर दैट वन, दे विल ट्रांसफर दैट मनी टू दैट अकाउंट, और मेरे अकाउंट में से उनके अकाउंट में मैं ट्रांसफर करूँगा। लेकिन मोस्टली हम यहाँ पर कमर्शियल में देखें तो नाउअडेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस इज डन, एंड दैट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस रिलेटेड वॉट एवर द ट्रांजेक्शंस आर देयर, इट मस्ट बी कीप इन माइंड, इट मस्ट बी थ्रू द बैंक ओनली। यानी यहाँ पर आपको बैंक के अलावा किसी कैश ट्रांजेक्शन्स को नहीं ध्यान में लेना है, और ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि you have to present different document through the bank only. So you have to pay the money through the bank, you have to receive the money through the bank only. So here in import export businesses, it is compulsory, okay, you have to do the business through the bank only. So foreign exchange is required for import export business. Is it possible? No, I said that means ke when the particular importer is receiving the money and sending the money, it is always through the bank only. Exporter will receive the money only through the bank. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने किसी के साथ पैसे भिजवा दिए और एक्सेप्ट हो गया, आपका गुड्स निकल गया। नो, सिंपल सा एक प्रोसेस है जो लंबा चलता है, सिंपल सा प्रोजेक्ट है लेकिन लंबा चलता है, याद रखना। वहाँ से आपको ये पेमेंट होगा। ये हमारे पिछले 9, 10, 11 चैप्टर्स में सब कुछ आ जाएगा, तब हम देखेंगे 9, 10 में, 11 में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम होगी, लेकिन 9, 10 में पूरी इन्फॉर्मेशन है चैप्टर नंबर में कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, वहाँ देखेंगे हम। यहाँ तो अब सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज इज कंपल्सरी नाउडेज इन द बिजनेस। सो द बैंक
विच हैज़ ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, यानी यहाँ पर आरबीआई, ये सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। सो एक बैंक है जिसने परमिशन ली है सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से, परफॉर्म्स द टास्क रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्विसेज and receives the documents related to foreign trade. So whenever the foreign trade is there, that foreign trade is done through bank only, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन उसके लिए भी आरबीआई से परमिशन लेनी जरूर है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर देयर इन आवर कंट्री, दे हैव द परमिशंस टू डू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड information. Okay, so they can provide and also they can start your business with the particular type of the procedure. ओके उसके बाद ही आपका कई बार ऐसा भी होता है आपका बिजनेस ही होता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बगैर चालू ही नहीं होता है। सो उस टाइम पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो विद द हेल्प और विद द परमिशन ऑफ द आरबीआई, डिफरेंट बैंक्स प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज। ओके सो फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल एंड दिस सर्विसेज are related not only to the financial transactions. Keep in mind it is also related to the some of the non-financial transactions, that is we can say some of the document related, because bank is not only providing this service, सब फाइनेंस का ही काम करेगी तो फिर कस्टमर्स तो वो तो चलेगा ही, चलो डिपॉजिटर्स है वो डिपॉजिट करेंगे पैसे और जो बोरोवर्स वो पैसे लेके चले जाएंगे। लेकिन बैंक कई बार डॉक्यूमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देती है, ये भी हमारे सिलेबस में सब कुछ, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जाता हूँ। यहाँ सिर्फ आप शब्दों को पकड़ के रखो कि परमिशन देती है कुछ लेटर लिखने के लिए। एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आई एम फाइनेंशियल साउंड, मैं फाइनेंशियली साउंड हूँ, तो किसको मालूम है? मैं जहाँ जॉब करता हूँ उसको मालूम है कि मेरा सैलरी 50,000 है, एक बंदा। दूसरा बंदा मेरा फैमिली को मालूम है कि मेरा सैलरी 50,000 है। तीसरा बंदा जो मेन है वो है बैंक, बैंक को ही मालूम है कितना सैलरी कब आता है और कितना विड्रॉल होता है। सो वेन एवर द नीड अराइज, मेरी फैमिली का स्टेटमेंट नहीं चलेगा, मैं जहाँ जॉब करता हूँ उनका स्टेटमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो लिख के देंगे इसका सैलरी इतना है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन्स हुए इसके हिसाब से आपके लिए जो फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बैंक प्रोवाइड करेगी। तो बैंक इज गिविंग दिस टाइप ऑफ द लेटर्स टू देयर कस्टमर्स कि दिस पर्सन इज फाइनेंशियली साउंड। तो ये डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स है जो बैंक आपको प्रोवाइड करती है। लोन लेने जाओ तो मालूम पड़ेगा। ओके सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। अब आगे थर्ड वन, टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट। यही जो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात की वही मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट की। आपकी मार्केट में क्रेडिट क्या है उसके हिसाब से ये चलता है, LC बोलते हैं इसको, L/C। सो लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ लेटर रिटन बाय वन बैंक अड्रेस्ड टू द अदर बैंक। तो यहाँ पर बैंक टू बैंक ये सब होता है। एक बैंक जानना चाहती है कि वहाँ पर जिसने कुछ ना कुछ अप्लाई किया है तो उसकी बैंक का जो रेफरेंस दिया है उससे हमें मालूम पड़ेगा कि ये बंदा फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। तो ये लेटर है, ये LC जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो लेटर रिटन लिखा जाता है, रिटन बाय वन बैंक एड्रेस टू द अदर बैंक। यहाँ बीच में कीप इन माइंड, ये डिटेल में भी है, यही चैप्टर में हम देखेंगे, यहाँ बीच में कोई भी कस्टमर नहीं आता है, बैंक टू बैंक ही सब काम होता है, विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट और आउटसाइड ऑफ द स्टेट ऑल्सो, और ऑल्सो वी कैन से आउटसाइड ऑफ द कंट्री टू। तो कंट्री के बाहर भी ये लेटर ऑफ क्रेडिट चलता है। तो एक बैंक दूसरी बैंक को ये लेटर की इन्फॉर्मेशन देती है। अच्छा, द बैंक एंश्योर्स द पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट एंड एट सर्टेन टाइम बाय द पर्सन मेंशन इन दिस लेटर। तो देखो ये लेटर में क्या लिखा है, वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन इज देयर इट विल बी देयर इन चैप्टर नंबर 10 ब्रीफली हियर एंड इन डिटेल 10। पर याद रखो बैंक यहाँ एक दूसरी बैंक को एश्योरिटी देता है, इंश्योरेंस देता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है कि पेमेंट जो है वॉट एवर द पेमेंट जितनी भी अमाउंट का है और जब भी मिलना है वॉट एवर द टाइम इज देयर बाय पर्सन द नेम इज मेंशन ही विल पे द अमाउंट। ये उसका लेटर है, यानी मिस्टर एक्स जो है वो पैसे देने वाला है, मिस्टर वाई जो है पैसे लेने वाला है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन दोनों की बैंक कनेक्टेड है। तो मिस्टर एक्स की बैंक जो है मिस्टर वाई की बैंक को एक लेटर देगी कि डोंट वरी अबाउट दिस पर्सन विल पे द अमाउंट ऑफ सो एंड सो एट सो एंड सो टाइम एंड विद सो एंड सो अमाउंट। तो इसकी गारंटी एक्स नहीं देता है वाई को, या वाई नहीं लेता है एक्स से, ये गारंटी मिलती है एक्स की बैंक से वाई की बैंक को। दैट इज द सिंपल इन्फॉर्मेशन। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि दोनों बैंकों के बीच में ट्रांजेक्शन होगा, बैंकों के बीच में ही ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी कि बंदा आपको पैसे दे देगा, डोंट वरी बिकॉज वी आर द बैंक एंड कंडक्टिंग द अकाउंट फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। सो एंड सो वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन इज दैट इट इज डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड, उसके ऊपर लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये लेटर श्योरिटी देता है। अच्छा, द बैंक कलेक्ट सर्टेन डिपॉजिट फ्रॉम द रिस्पेक्टेड पर्सन बिफोर इश्यूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट और द बैंक गेट्स गारंटी ऑफ द सेम अमाउंट। तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है,
कि देखो यहाँ बैंक भी रिस्क लेना नहीं चाहती एक्चुअली। आप 10 20 15 साल से या 25 साल से बैंक के साथ कनेक्ट है तो बैंक आपसे अमाउंट नहीं मांगेगी। लेकिन कई बार क्या है, बैंक आपसे जो भी अमाउंट आपको पे करनी है मिस्टर वाई को, हमारे एग्जांपल में वो मिस्टर एक्स से बैंक ले लेगी, सर्टेन डिपॉजिट फ्रॉम द रिस्पेक्टेड पर्सन बिफोर इश्यूइंग द लेटर। तो जब एक्स की बैंक वो लेटर लिखेगी वाई की बैंक को, उसके पहले एक्स की बैंक ने वो पैसे एक्स से ले लिए होंगे। लेकिन कीप इन माइंड, ये भले लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। अगर पैसे ही लेने तो लेटर की क्या जरूरत है, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। कई बार ऐसा भी होता है फाइनेंशियली स्ट्रांग, तो वाई आई विल नॉट सेंड डायरेक्टली चेक टू दैट पर्सन, ओके। लेकिन ये नहीं कर रहा है, इसीलिए सब हमें प्रूफ चाहिए, सो एक एविडेंस चाहिए, एक पर्टिकुलर परमिशन चाहिए, दैट्स वाई दिस लेटर इज गिवन। सो यहाँ मिस्टर एक्स की जो बैंक है वो अमाउंट डिपॉजिट करवाएगी या फिर गारंटी लेगी मिस्टर एक्स से, भाई आर यू रेडी टू पे द अमाउंट ऑन सो एंड सो डेट। यस, एक्स इज रेडी, सो सिंपली दिस लेटर इज गिवन बाय द एक्स टू, यानी एक्स बैंक्स टू वाइस बैंक, सिंपल। सेम अमाउंट जो भी है उसकी गारंटी ले लेगी। अब गारंटी में आपको एसेट भी देनी पड़े, जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड है, मिस्टर एक्स के ऊपर। सो द अमाउंट मेंशन इन द लेटर ऑफ क्रेडिट इज पेड at fixed time to the person whom the bank has insured for the same. So whatever the amount is mentioned in letter of credit, ये letter of credit बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। कई बार इसमें अमाउंट नहीं भी लिखी हो, लिखी भी हो, whatever, लेकिन जो अमाउंट मेंशन की है, that amount will be given at the same time which is written in the particular letter. ओके, लेटर में जो डेट लिखी गई है, जो अमाउंट लिखी गई है, उसी अमाउंट और उसी डेट पर उसको ये पैसे मिलेंगे जिसको पैसे देने हैं। हमारे पर्टिकुलर एग्जांपल में वाई को पैसे देने हैं, लेकिन वाई को पैसे तभी मिलेंगे जब एक्स की बैंक वाई की बैंक को ये लेटर देगी और मिल जाएगा। ओके, सो अमाउंट विल बी रिसीव। तो वॉट एवर द अमाउंट इज रिटर्न इन एलसी इज पेड एट द फिक्स टाइम। वो टाइम नक्की है, राइट। 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी है उसके अंदर आ जाएगा, 3 महीने के बीच में आ जाएगा, ओके। दैट एंश्योर फॉर द सेम। अच्छा, थस एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट मेक्स द अकाउंट इन ट्रांजेक्शन ट्रस्टवर्दी। तो ये उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर चलो दोनों बंदे सामने सामने मिस्टर एक्स मिस्टर वाई दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों नोन है, तो फिर ऐसी कुछ जरूरत नहीं, लेकिन ये ट्रस्टवर्दी है। सी बिजनेस इज बिजनेस, सम अदर रिलेशंस आर अदर्स। So whenever you are doing the business, keep in mind that documents are at the top. Always documents are required. So this particular letter of credit is trustworthy whenever this type of the transactions are there in import and export way. Right? So here the bank earns income in the form of commission by offering this service. तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक को कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। विदाउट एनी टाइप ऑफ द बेनिफिट्स हाउ वाई बैंक इज गिविंग दिस टाइप ऑफ द लेटर्स। तो बैंक को अकाउंट मिलता है, बैंक के पास वो अकाउंट होल्डर है, राइट। लेकिन बैंक की कुछ तो ऐसी फीस होगी ना। तो यहाँ पर बैंक अर्न करता है इनकम उनकी क्या होती है, कमीशन। अब आपके लिए कमीशन नया नहीं है, राइट। आपको मालूम है कि जब भी आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, राइट, और आपकी खुद की सर्विस है तो आप कुछ चार्ज करोगे, और आपकी खुद की सर्विस नहीं और आप प्रोवाइड करते हो तो यू विल टेक द कमीशन। दैट इज द वन पार्ट ऑफ द इनकम, राइट, ऑफरिंग दिस सर्विस। ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करते हो। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ वन, टू इश्यू ट्रैवलर्स चेक TC. Nowadays travelers cards are available. Before starting this one, I just want to give you some information that when you are traveling from Anand to Ahmedabad, see 80 kilometers या फिर बाय ट्रेन जाओ तो 80 दिखाता है, लेकिन बाय रोड जाओ तो 67-70 किलोमीटर, राइट। तो समझ लो कि हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं कि 80 किलोमीटर्स है। सो 80 किलोमीटर्स में इतना रिस्क नहीं है। आप 1 लाख रुपये अपनी कार में लेके जाओ तो सी एक्सप्रेस हाईवे से निकल जाओ, नो रिस्क, ओके। कोई आपको रोकेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन यही चीज़ अगर आप आनंद से दिल्ली जा रहे हो, राइट, सो मे बी सो मैनी टाइम्स आपको स्टॉप होना पड़ेगा, कई बार कोई भी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो रिस्क इज देयर। तो अगर ऐसा नहीं करना है, सो बैंक प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ द ट्रैवलर्स से। अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ आपके एक बिजनेसमैन की बात की, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो और आपको यहाँ से कोई और स्टेट में जाना है, कोई और कंट्री में जाना है, तो दिस सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। सी बिकॉज ऑफ दैट UPI, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द डिजिटल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सर्विस बहुत कम हो गई। शायद कई बैंकों ने बंद भी कर दी है, सर्विस अभी चल भी नहीं रही है। लेकिन ट्रैवलर्स कार्ड फर्स्ट टाइम एक्सिस बैंक ने शुरू किया था, ओके। ट्रैवलर्स एक्ट तो बहुत सालों पहले निकला था, लेकिन रिस्क बहुत कम है इसमें,
ज़ीरो लेवल में बोल सकता हूँ, क्योंकि सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास ये चेक है, आप खुद चाहोगे तो ही आपको ये पैसा मिलेगा, आउटसाइड ऑफ द कंट्री या विद इन द कंट्री। तो देख लेते हैं क्या है, ये भी डिटेल में है, डोंट वरी। इन प्रेजेंट टाइम मोर एंड मोर पीपल हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग, जाते हैं ना, घूमने लेके जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, टूरिंग के लिए जाते हैं, राइट, कोई भी पर्पज़ के लिए। सो पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग ट्रैवलर चेक इन ऑर्डर टू प्रिवेंट themselves in losing their cash or getting it stolen during their travel विद इन कंट्री और अब्रॉड। तो ये सिंपल सी दो सेंटेंसेस की इंफॉर्मेशन आपको कई चीज़ें कह जाती है। सिंपल मैं बताना चाहूँगा कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देयर इज अ रिस्क ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कैश लॉसिंग, यानी यू विल लॉस द कैश, कोई भी रीज़न हो, अगर ऐसा नहीं हो तो चोरी हो सकता है, गेटिंग स्टोलन ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग। तो जो भी हो रिस्क है, तो वो रिस्क विद इन द कंट्री आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी दिखता है। सो द होल्डर ऑफ द ट्रैवलर्स चेक कैन विड्रॉ मनी थ्रू द चेक फ्रॉम अनदर आउट स्टेशन बैंक और फ्रॉम फॉरेन बैंक ब्रांच बाय साइनिंग एज पर हिज स्पेसिमेन सिग्नेचर। अब ये सेंटेंस फिर से याद रखना कि यहाँ पर जो होल्डर है, याद रखो होल्डर यानी जिसके पास ये चेक है, द पर्सन जिसका नाम है उसकी बात हम नहीं करते, लेकिन द होल्डर ऑफ द चेक जिसके पास ये चेक है वो विड्रॉ कर सकता है मनी, राइट, कहाँ से, आउट स्टेशन बैंक जो भी है और फॉरेन बैंक जो भी है वहाँ से। लेकिन याद रखो कि फॉरेन बैंक में जो भी उसके, यहाँ मैंने एसबीआई का ये एसबीआई से ही चेक लिया, तो मैं फॉरेन में जाऊँगा तो मुझे वहाँ मोस्टली एसबीआई से ही मिलेगा, अथवा मे बी कदाच એને સંલગ્ન જે પણ બેંક હોય એનો કહેવાનો મતલબ easily the foreign bank is connected with the Indian banks. So SBI is not available in foreign, है अवेलेबल है, शायद नहीं है, तो यहाँ से SBI का उस कंट्री में कुछ कनेक्शन होगा, वहाँ पर ये चेक आप लेके जाओगे, यू विल गेट द मनी। सो विद इन दैट आउट स्टेशन ऑफ द कंट्री, आउट स्टेशन बैंक और आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज बैंक, फॉरेन बैंक, सो ब्रांच होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि साइनिंग एज पर द स्पेसिमेन सिग्नेचर, जो यहाँ विद इन द पर्टिकुलर कंट्री, जो यहाँ समझ लो आनंद से इसने टीसी लिया, तो आनंद की जो बैंक में उसने स्पेसिमेन दिया है वही स्पेसिमेन कैरी करके जाना, यानी कि सेम पर्टिकुलर सिग्नेचर मस्ट बी रिक्वायर्ड व्हेन एवर ही विल विड्रॉ द मनी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री विद इन द कंट्री। जहाँ से भी वो पैसे लेगा उसको ये स्पेसिमेन के हिसाब से जाना पड़ेगा और क्रॉस चेक होगा, डोंट वरी अबाउट दैट वन, नाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो क्रॉस चेक होगा, स्पेसिमेन सिग्नेचर, और मोस्टली ऐसा ही होता है कि जिसने चेक विड्रॉ किया होता है, मीन्स जितने कैश या डिपॉजिट किए हुए वही चेक से विड्रॉ कर सकता है। सो ये थी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत। नाउ दिस चेक इज़ वेरी रिलायबल एंड ट्रांसफरेबल, इसके आप ऊपर आप थोड़ा रिलायबल रह सकते हैं, ये रिलायबल है और ऑल्सो ये ट्रांसफरेबल भी है, क्यों, आपकी जगह कोई और भी उसको ले सकता है, लेकिन यहाँ पर सिग्नेचर इज मस्ट। सो द यूज ऑफ टीसी ट्रैवल चेक्स has decreased as the facility of ATM has become widespread. Nowadays ATM is also decreased. Okay, कई बैंक्स, नेशनलाइज बैंक की ATM बंद हो चुके हैं अभी के लिए, है, तो ये भी याद रखो कि ATM शुरू हुए उसके बाद ट्रैवल चेक कम होकर, और अब तो वो भी ATM भी कम होकर डायरेक्टली हम सब सर्विसेज लेते हैं, गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, भीम ऐप है, UPI सब जो चालू हो गया उसका हम बेनिफिट लेते हैं, सिंपल। So these are the some information, or this is the information for the fourth one, that is traveler's check. Now let's move to the fifth one, that is service of demand draft. अब ये जो भी सर्विसेज है, जो ट्रैवलर्स चेक है, राइट, ये डिमांड ड्राफ्ट है, ये डिटेल में है हमारे, लेकिन फिर भी एज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी फंक्शन हम यहाँ देखते हैं। चलो हियर इट इज। तो ये डिमांड ड्राफ्ट क्या है, थोड़ी एक आध मिनट का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था जब हमने डिस्कस किया था, वो लिस्ट था, लेकिन देख लेते हैं। डिमांड ड्राफ्ट इज अ चेक रिटन बाय अ बैंक इन फेवर ऑफ द ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। अब आपको मालूम पड़ा होगा कि यह क्या कहना चाहता है, नहीं पड़ा है तो फिर से एक बार सुन लीजिए। व्हेन एवर दिस टाइप ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट इज देयर, इट्स अ चेक। अब आपको मालूम तो होगा ही कि चेक क्या है, राइट। व्हेन यू विल ओपन द अकाउंट, इफ यू विल मेक मिनिमम बैलेंस इन योर पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट तो हालांकि बिजनेसमैन के लिए, तो उसके हिसाब से आपको चेकबुक मिलेगी। ओके, अगर आपको चेकबुक नहीं लेना तो मिनिमम बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि 500 रुपये में आप अकाउंट खोल सकते हो, उसको मिनिमम 500 रखना है क्वार्टरली, उसमें चेकबुक नहीं मिलता। 1000 रुपया है उसमें आपको चेकबुक मिलता है, लेकिन अभी के लिए कई बैंकों ने ये सब कुछ चेंज कर दिया है, 2500 रुपीज़ कर दिया, कई बैंक ने 5000, कई बैंक ने 10,000 कर दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स।
और जो भी नेशनलाइज बैंक है उसमें अभी भी 500, 1000, 2500 चलता है। सो ये जो पर्टिकुलर डिमांड ड्राफ्ट है वो एक चेक है, रिटर्न किया जाता है, लिखा जाता है एक बैंक से, वो बैंक लिखती है इन फेवर ऑफ द ब्रांच ऑफ द सेम बैंक, वही बैंक की दूसरी बैंक के ऊपर। यानी समझ लो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चलो वो नाम सेम होता है तो आपको शायद प्रॉब्लम हो, तो हम लिखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये चेक लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, किसके लिए लिखा है? इन द फेवर ऑफ ब्रांच ऑफ द सेम बैंक, तो उसी बैंक की एक अलग ब्रांच के लिए लिखा है। ओके, लेकिन वो आउटसाइड ऑफ द एरिया होगी, आउटसाइड ऑफ द, वो जो वर्किंग है बैंक का उसके बाहर होगी। सो द नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन इन द डिमांड ड्राफ्ट एंड ऑर्डर इज इश्यू टू पे द अमाउंट टू द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द ड्राफ्ट। यानी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ही बैंक को, यानी फेवर ऑफ द ब्रांच ऑफ द सेम बैंक, अपने ही बैंक के एक ब्रांच को ये चेक देती है, उसके ऊपर किसी का नाम लिखा जाता है, जिसका नाम है उसी को पैसे मिलेंगे। यानी कि दूसरे को ये पैसे नहीं मिलेंगे और वो भी डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, उसके अकाउंट में वही नाम से वो पैसे जमा होंगे। याद रखना, फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, ये सेंटेंस पढ़ता हूँ कि द नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन इन द डिमांड ड्राफ्ट, उस पर लिखा है चेक पे नाम, डिमांड ड्राफ्ट पे, एंड ऑर्डर हियर द ऑर्डर इज गिवन बाय द बैंक, बीओबी ऑर्डर देती है टू इश्यू टू पे द अमाउंट टू द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द ड्राफ्ट। तो जो चेक है, जो डिमांड ड्राफ्ट के उसके ऊपर जिसका भी नाम लिखा है उसी को पैसे देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ही ब्रांच के दूसरे पर्टिकुलर एरिया में ऑर्डर देती है। सो ड्राफ्ट इज अ सिक्योर मीडियम while sending money to a person or firm। तो याद रखना इसका पॉजिटिव पॉइंट है, वेरी सिक्योर, और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के जो भी काम है इसी डिमांड ड्राफ्ट से होते हैं। सो वेरी सेफेस्ट, वेरी सिक्योर medium while you want to send the money from one place to another person, one place to another place, one firm to another firm, right? So the person or the firm desirable to send money fills in a certain form and request the bank to issue the draft। अगर आपको ये डिमांड ड्राफ्ट निकलवाना पड़ेगा, ये रेडी नहीं होगा, एक पर्टिकुलर येलो कलर का स्लिप होगा, वो येलो कलर का स्लिप आपको बैंक में जाके भरना होगा, राइट? कहाँ पर पेएबल करना है वो इन्फॉर्मेशन खास स्पेशली लिखनी पड़ेगी। अगर मुझे गांधीनगर में पैसे देने हैं, ओके, सो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर, वो लिखना पड़ेगा, तभी उसके पास पैसे जाएंगे, और उसका वही नाम का अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, नो, तो ही विल नॉट रिसीव द मनी। होगा ही जनरली, मैंने बोला ना, गवर्नमेंट के जो काम है उसमें ये चलता है। तो आगे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, शायद सेक्रेटरी टू द जीएससीबी, सेक्रेटरी टू द सो एंड सो, उसके नाम से आपको ये डिमांड ड्राफ्ट निकालना पड़ता है। वो ऑलवेज डिमांड करते हैं डिमांड ड्राफ्ट की, सो उसका नाम होना चाहिए। वो पीला वाला जो रिसिप्ट है आपको भरना पड़ेगा, उसका एक लेफ्ट हैंड साइड, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा हम जब पर्सनली मिलेंगे। सब कुछ दो परपोरेट में होता है, एक छोटा वाला होता है और एक बड़ा वाला। जो 100% हम पूरा कागज ले तो 25% हमारे पास वापस आता है परपोरेट वाला, और 75% बैंक अपने पास ले लेती है। ओके, सो ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, ये बैंक दूसरी बैंक को देगी। अगर मुझे पैसे देने हैं, अगर एक फर्म को, एक पर्सन को दूसरे फर्म और पर्सन को देनी है, सो वॉट एवर द अमाउंट, ओके, एक हमें उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बैंक को कि भाई हमें ये चाहिए। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिक्वेस्ट, हम जो रिक्वेस्ट करेंगे डिमांड ड्राफ्ट की, द बैंक राइट्स द नेम ऑफ द receiver of the money on the draft and orders its branch or its associate bank to pay the amount। अब देखो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है एसोसिएट बैंक। कई बार ऐसा होता है कि कई बैंक होती है, उनकी ब्रांच कई स्टेट में नहीं होती है, शायद दूसरे स्टेट में होती है, वहाँ जिसके ऊपर हमने ये डिमांड ड्राफ्ट लिखा है वहाँ पर नहीं, तो उसके एसोसिएटेड बैंक होती है। अब एसबीआई है तो एसबीआई के एसोसिएटेड बैंक सभी है, बिकॉज आरबीआई के बाद जो सबसे बड़ी बैंक है, कीप इन माइंड, सबसे बड़ी जो बैंक है जो ये सब देखती है वो एसबीआई। हाँ, इन द सेंस ऑफ द वर्किंग वो सबसे बड़ी है, लेकिन इन द सेंस ऑफ द आउटपुट और इन द सेंस ऑफ द अर्निंग, इन द सेंस ऑफ द प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कई अलग अलग बैंक है जो हर साल चेंज होती है, वो प्राइवेट हो या नेशनलाइज हो, वो डिपेंड करता है। लेकिन एसबीआई है तो उसके एसोसिएटेड बैंक जब ये सबके वहाँ ये हो सकता है, लेकिन याद रखो मोस्टली बैंक टू बैंक होता है, तो उनको ऑर्डर देगी अमाउंट पे करने के लिए। अच्छा, द सेंडर पेज, जो भी पैसा दे रहा है, द सेंडर पेज द बैंक नॉट ओनली द अमाउंट मेंशन इन द ड्राफ्ट बट ऑल्सो द कमीशन फॉर द सेम।
तो यहाँ रखो, जो आप पीला वाला रिसिप्ट भरते हो उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि वॉट एवर द कमीशन अमाउंट इज देयर, वो जनरली 1000 रुपीज़ तक जो होता है 25 रुपीज़ होता है, यानी वो डिपेंड करता है कि आप कितनी अमाउंट पे, तो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कौन सी बैंक है। ओके, उसके हिसाब से डिमांड ड्राफ्ट निकलता है। आप 100 का डिमांड ड्राफ्ट निकलवाओ या 1000 का निकलवाओ, यू हैव टू पे सम ऑफ द मिनिमम अमाउंट, दैट इज 25, 30 वॉट एवर द अमाउंट, आपको उसको पे करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ मेंशन करना, लेकिन जो ड्राफ्ट आएगा, जो चेक आएगा, उसमें तो आपने जो भेजी है वही अमाउंट आएगी, उसमें कोई कमीशन लिखा हुआ नहीं होगा। सो द सेंडर पेज द बैंक नॉट ओनली द अमाउंट मेंशन इन द ड्राफ्ट बट ऑल्सो द कमीशन फॉर द सेम है, तो कमीशन भी लिखा जाएगा, वो हमें लिखना पड़ेगा। एंड इफ द बैंक इश्यूज सच ड्राफ्ट विच कैन बी एनकेस्ड, एनकेस यानी आपने उसको कैश करवा लिया, एनकेस करवा लिया, सो बैंक जो है वो ड्राफ्ट लिखती है, चेक लिखती है, ओके, और उसको एनकेस कर लिया इन इट्स ओन सिटी, अपनी ही सिटी में हुआ, आनंद का आनंद में हुआ, तो वो बोला जाएगा पे ऑर्डर। तो याद रखो, डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर सेम है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट है दैट इज नॉट फॉर द वन पर्टिकुलर सिटी, इट इज फॉर द आउटसाइड ऑफ द सिटी, और विद इन द सिटी होगा तो वो हो जाएगा पे ऑर्डर। ओके, सो दोनों सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग है। सो याद रखो कि ड्राफ्ट विच कैन बी एनकेस इन इट ओन सिटी, अपनी ही सिटी में अगर ये एनकेस्ड हो गया, उसको विड्रॉ कर लिया, तो फिर वो कहला जाएगा पे ऑर्डर। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर द डिमांड ड्राफ्ट। डिटेल में है, हम उसको देखेंगे फिर से, मैं इसीलिए बारी बारी बोलता हूँ कि अभी भी मालूम ना हुआ तो डोंट वरी, इट इज़ देयर इन आवर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अभी 3 सर्विसेज और भी बाकी है, लेकिन आई विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज different type of the information that of the credit of the person is provided by the one bank to the another and one person to another, also underwriter services and some of the services of the demat ATM and safe deposit. We'll discuss it later on. Thank you very much. Stay at home, stay safe.